So today we will talk about the most important topic of all exams, whether it is NCLEX or any other government exam. So that topic is tension pneumothorax. So this lecture is gonna be bilingual. So first we will talk about what is pneumothorax. Pneumothorax is air around and outside the lung. A tension pneumothorax occurs when air enters the pleural space but cannot escape, leading to increased intrathoracic pressure. So what it means is टेंशन न्यूमोथोरेक्स से क्या होता है कि जो एयर होती है वो हमारी प्लूरल स्पेस में आ तो जाती है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन बट वो बाहर नहीं जा पाती ड्यूरिंग एक्सपीरेशन. सो इसकी वजह से क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी दिस स्पेस इन द लंग्स जो ऑलरेडी एक स्पेस फील्ड है उसमें और एक्स्ट्रा एयर फील्ड होगी तो उससे क्या होगा, जो उस जगह का प्रेशर होगा इट विल इवेंचुअली इंक्रीज. सो इन दिस केस इंट्राथोरेसिक प्रेशर विल इंक्रीज. अब वो प्रेशर इंक्रीज हो गया उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है. सो दिस प्रेशर बिल्डअप कैन कॉज कोलैप्स ऑफ द अफेक्टेड लंग, compression of the opposite lung, shift of mediastinal structures. अब क्या होगा, जिस जगह पे प्रेशर बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर जो स्ट्रक्चर्स थे बॉडी के अराउंड दैट पर्टिकुलर पार्ट वो अनअफेक्टेड साइड पे मूव हो जाएंगे. मोस्टली इट इज टूवर्ड्स द राइट साइड. So the organs such as heart, vessels, they will be moving to the unaffected side, which is usually right side. एंड इन केस अगर ये न्यूमोथोरेक्स स्पेशली टेंशन न्यूमोथोरेक्स इफ इट इज लेफ्ट अनट्रीटेड उससे क्या क्या हो सकता है, इट कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट एंड डेथ. सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ दिस डिजीज. नाउ व्हाट हैपेंस इज when the air it enters the pleural space, and mostly the cause of tension pneumothorax is trauma. When it enters the pleural space, what it causes is it increases the pressure. How? What happens is the valve-like mechanism of air entry allows for expansion but prevents its escape, causing progressive pressure on the lung and other structures. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, इससे क्या ऑलरेडी एयर थी लंग्स में, उसकी वजह से और एयर आ चुकी है बट द प्रॉब्लम इज जो एक्स्ट्रा एयर आई है वो बाहर नहीं जा पा रही जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ चुका है और जो स्ट्रक्चर्स थे उसके अराउंड दे हैव मूव टू अदर unaffected side which is usually right side. This leads to a decrease in venous return to the heart, reducing cardiac output, impairing ventilation and oxygenation. अब जैसे कि हमने देखा कि वेसल्स और हार्ट ये अपनी पोजीशन से मूव करेंगे तो उससे क्या होगा, जो वेसल्स होंगी उसकी वजह से जो वीनस रिटर्न है ब्लड का वो हार्ट पे कम आएगा जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम होगी. कार्डियक आउटपुट कम है तो वेंटिलेशन में भी प्रॉब्लम आएगी एंड इट विल ऑल्सो लीड टू प्रॉब्लम इन ऑक्सीजनेशन. Now we will discuss risk factors. As I mentioned earlier, the very first will be trauma. अब trauma क्या होगा, कोई भी रिब फ्रैक्चर हो गया, कोई गन शॉट, स्टैब वुंड का मतलब किसी ने किसी को चाकू मार दिया, समथिंग लाइक दैट विच इज़ वेरी वायलेंट, और ब्लंट फोर्स ट्रॉमा. अब ये तो आ गई ट्रॉमा में कैटेगरीज कि कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई फाइट हुई उसकी वजह से. अब कुछ और भी कॉजेज हैं लाइक मेडिकल प्रोसीजर्स. फॉर एग्जाम्पल CVP कैथेटर प्लेस करते टाइम देयर इज टेंशन न्यूमोथोरेक्स, then mechanical ventilation with high pressures. Sometimes because of COPD, which is a lung disease, asthma, cystic fibrosis. What happens in cystic fibrosis is, I will give you a brief. There is accumulation of secretions. Then barotrauma, which means the pressure, because of the pressure of the air, which is from the mechanical ventilation, it lead to tension pneumothorax. Where there is baro, it means pressure. Okay, so now we will discuss about clinical manifestations. Now, whenever there is problem in lungs or respiratory system, you can expect these common manifestations, clinical manifestations. There will be sudden severe pleuritic chest pain. Now, in this case, there is pleuritic chest pain. The reason is the air is trapped in the pleura.
So that's why it is irritating the that membrane, so that layer, it will lead to pleuritic chest pain. Then tachypnea, which is rapid breathing, tachycardia, fast heart rate, cyanosis. Now cyanosis is bluish discoloration of lips, face and extremities. What's the cause of cyanosis? So as we discussed कि साइनोसिस कैसे होगी, जब ब्लड कम जा रहा है हार्ट पे ब्लड कम है, ऑक्सीजनेशन कम हो रही है, जिसकी वजह से बॉडी के ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, और जिसकी वजह से क्या हो गया, साइनोसिस. फिर होगा ट्रेकियल डिविएशन, जैसे हमने बताया था कि अवे फ्रॉम द अफेक्टेड साइड. Then there will be decreased breath sounds on the affected side, hypertension, distended jugular vein, then anxiety, restlessness, and asymmetrical chest expansion. Now, how we are gonna diagnose this? So first, जो ट्रेकिया था उसकी डिविएशन हो चुकी है, ब्रेथ साउंड कम हो जाएंगी, हाइपर रेजोनेंस हो जाएगी इन परकशन. सो उससे क्या होगा, परकशन में हाइपर रेजोनेंस क्यों होगी. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. एक रूम है जो खाली है, जिसमें सिर्फ हवा है, कुछ नहीं रखा हो, उसमें जब हम बोलते हैं तो वो वॉइस रेजोनेट करती है बिकॉज ऑफ द एयर. सो इन द सेम वे लंग्स में बहुत ज़्यादा हवा भर चुकी है, बहुत ज़्यादा एयर है, उसकी वजह से क्या होगा, हाइपर रेजोनेंस होगी. फिर चेस्ट एक्सरे, देन देयर विल बी मीडियस्टिनल शिफ्ट टुवर्ड्स एन अफेक्टेड साइट. अल्ट्रासाउंड के विद हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड ऑल्सो हम इसको असेस कर सकते हैं. नाउ द थिंग इज, जो टेंशन न्यूमोथोरैक्स, इट इज एन इमरजेंसी सिचुएशन, इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी. So now we will look into its treatment and management. So the immediate management would be needle compression. अब क्या होगा इसमें, एक जो 14 to 16 गेज की गॉज की जो नीडल होगी, लार्ज बोर नीडल, उसको सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, जो कहाँ पर है, टुवर्ड्स द मिड क्लेविकुलर लाइन, और वो भी कौन से साइड पर, अब एयर कौन से साइड पर है, अफेक्टेड या अनअफेक्टेड. सो इट इज टुवर्ड्स द अफेक्टेड साइड. सो टुवर्ड्स अफेक्टेड साइड उस नीडल को हम इंसर्ट करेंगे इन ऑर्डर टू रिलीज द ट्रैप्ड एयर. लेट्स टेक एन एग्जांपल, बलून है, उसमें एयर फिल्ड है, तो हम जब उसको नीडल से प्रिक करते हैं तो एयर कम्स आउट. इन द सेम वे, in this case we will insert the needle and it will automatically release the trapped air. Then the second is chest tube insertion. The chest tube will be placed in the 4th to 5th intercostal space. So now here's a catch. In needle compression, the needle is inserted in the second intercostal space, whereas in chest tube insertion, the chest tube, it is placed in 4th to 5th intercostal space. Now the oxygen therapy. So basically high flow oxygen is given, जो किसके थ्रू दिया जाएगा, वाया नॉन रीब्रीदर मास्क. देन मॉनिटर करेंगे हाइपरटेंशन, क्योंकि शॉक, देयर इज अ रिस्क ऑफ शॉक, तो रेस्पिरेटरी स्टेटस. अब इसमें हम नर्सिंग इंटरवेंशंस की बात करते हैं. अब जैसे कि ये एक लंग डिसऑर्डर है, तो इसमें हमें मॉनिटर करना है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को, कि हमने रेगुलर असेसमेंट करनी है ब्रीदिंग रेट को, डेप्थ को. देन हमें ब्रेथ साउंड्स को असेस करना है कि कम हुई हैं या उसमें है ही नहीं, देयर इज एब्सेंट. देन इफ देयर इज सच केस, फिर हमें इमरजेंसी इंटरवेंशंस के लिए भी प्रिपेयर रहना है. वी हैव टू इंश्योर हमारे पास इक्विपमेंट्स है. इक्विपमेंट्स में क्या आएगा, चेस्ट ट्यूब एंड नीडल. देन वी हैव टू एडमिनिस्टर pain killers and analgesic, we can say, for pain relief. Then you have to educate the patient if he is conscious. So there are few complications also, as the first one is hypotension. क्यों होती है, उसके बाद कार्डिक अरेस्ट भी हो सकता है अगर हम टेंशन न्यूमोथोरैक्स को टाइम पर मैनेज ना करें. देन इन्फेक्शन फ्रॉम द chest tube. So this was all about tension pneumothorax. So most probably in the next section we will be discussing the NCLEX practice questions. If you have any doubt, you can just type in the comment and then we will discuss in the next video.